Hello students, welcome back. So today I am going to explain you grade 8 chapter 1, the arrival of Europeans in India, part 2. Already in part 1 we have discussed many things like which were the European countries came into India, for example the Portuguese, the Dutch, then the Britishers. They came in India for the trading purpose. All this we have discussed, and now we will discuss further which were the other countries came into India for trading purpose. So let's get into the chapter. The French established the French East India Company in the year 1664 century. So in which year the French East India Company came and established their company over here? The French people came in India in 1664 century. They established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry. Now it is called Pondicherry. So when initially they came, they established factories in Surat, Machilipatnam and Puducherry, and now it is called as Pondicherry also. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European rule in India. The head of this French East India Company, okay, who was the head? Joseph Francois Dupleix, and his desire was to expand the European rule in India. उनका इच्छा था, desire means इच्छा. Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European country. Thus there was a cutthroat competition between the French and the Britishers. Initially, if we do, we already know that both of the French and the Britishers are the European country itself, are from the European country, but still they had a cutthroat competition that who will earn more profit, who will do more trading, and who will earn more profit from India. There were innumerable disputes and battles, and finally the British emerged as the winners. So finally there were many battles, many disputes, बहुत सारे fight हुए थे between the French and the Britishers, and finally the Britishers won the battle. However, the French retained their control over the trading centers of Puducherry, Mahe and Chandranagar. So at the end the French only retained, मतलब French के पास सिर्फ तीन ही territories बचे थे, and that was Puducherry, Mahe and Chandranagar. Now let's get into other topic, that is British trade in Bengal. So already we know that Britishers got permission to trade in Bengal also, and we know that Bengal was one of the biggest province of that time. सबसे बड़ा एक काफ़ी बड़ा state माना जाता था उस time का. The British first started their trade on the bank of the river Hooghly and established forts in the year 1651 century. So firstly when they started trading over there in Bengal, they established a fort where in near the bank of river Hooghly. Hooghly is the name of a river, और उसके बैंक पे, उसके किनारे पे उन्होंने एक अपना फोर्ट एस्टेब्लिश किया था फॉर ट्रेडिंग पर्पस in the year 1651 century. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. And एडिशनली जब फोर्ट बनाया गया था तब वो फोर्ट को काफ़ी प्रोटेक्शन दिया गया था, काफ़ी अच्छे से उसको प्रोटेक्ट किया गया था ताकि प्रॉपर जो है ट्रेड प्रॉपरली किया जा सके ट्रेडिंग. एंड एडिशनली दे गॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्पर औरंगजेब टू trade without paying any taxes. Normally we know that if between countries if any trading is going on, like import export कभी भी होता है कि कोई भी country के बीच में global level में, तो taxes pay करना रहता है. But at that time Mughal Emperor Aurangzeb was ruling over there in India, and he given the permission to trade without paying any tax against an annual payment. Okay, so here you can see the picture, ships of the British and their forts. See how the different forts they have established. See how they were talking. Okay, the merchants. This was the scenario of that time. Now further we will discuss. By this time the East India Company was in a race to earn more and more money. तो इस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था. एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल ओनली द company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were immersed in private trade did not pay the taxes as well. See, according to the order passed, जैसे कि बंगाल का ऑर्डर पास हुआ था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला था only they were availed the benefit of tax free पेमेंट. खाली उनको ही टैक्स फ्री करके टैक्स नहीं पे करने का जो था वो अपॉर्चुनिटी मिला था. बट more and more the private traders who were engaged in the trading purpose, they also started not to pay tax as well. As a result, the income generated from the tax collection
in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal Murshid Quli Khan. इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टैक्स कलेक्शन था बंगाल का वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि टैक्स जो होता है कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी सरकार का जो होता है मेन इनकम होता है, राइट. दैट्स वाई गवर्नमेंट इज टेलिंग दैट टू पे टैक्सेस. हमको टैक्स पे करना ज़रूरी होता है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं उसके ऊपर, बिकॉज अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं दैट मीन्स वो हम हमारे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इन रिटर्न वो गवर्नमेंट ही हमें कुछ ना कुछ हमारे देश में, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट की तरह करके देगा. तो टैक्स पे करना बहुत ही ज़रूरी होता है. बट एट दैट टाइम यू नो ओनली द ब्रिटिशर्स गॉट दैट अपॉर्चुनिटी नॉट टू पे टैक्स. उनको देखते हुए बहुत सारे प्राइवेट ट्रेडर्स ने भी टैक्स पे करना बंद कर दिया. तो धीरे धीरे जो टैक्स कलेक्शन का जो मनी था वो बंगाल में आना बंद हो गया, जिसके वजह से जो उस टाइम के बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, उन्होंने उसका अपोज किया, उसके खिलाफ खड़े हुए. दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. और ये जो डिस्प्यूट था, नाउ इट वाज टोल्ड टू ब्रिटिशर्स टू पे द टैक्सेस, बट दे वर नॉट रेडी टू पे द टैक्सेस. सो आफ्टर मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान केम एंड ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. बट उनके टाइम में भी यही डिस्प्यूट चलता रहा. आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज. अली वर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बने. उनके टाइम में भी यही डिस्प्यूट था, उनके बीच में झगड़े थे. टू पे द टैक्सेस, वन द नवाब ऑफ बंगाल यूज टू से टू पे द टैक्सेस टू ब्रिटिशर्स. ऑन इन रिटर्न द ब्रिटिशर्स टेल देम नॉट टू पे द टैक्सेस. वो बोलते थे कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे. ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिशर्स. इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनके बीच में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ. बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द नवाब ऑफ बंगाल. सी विच वॉज दैट द बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. So he became the Nawab of Bengal in the year 1756. Here you can see his picture also, Sirajuddaulah. He had an overwhelming influence over the Britishers. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सिराजुद्दौला के जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, अलग अलग राज्य के जो नवाब थे, उनको उनके खिलाफ कर दिया, सिराजुद्दौला के खिलाफ कर दिया, ताकि किसी भी तरह से सिराजुद्दौला को बंगाल के जो कुर्सी है, थ्रोन का मतलब होता है राजा की कुर्सी, ठीक है, उनके उस ओहदे से निकालने के लिए दूसरों को भी अपनी तरफ कर दिया. ठीक है. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. See, Sirajuddaulah and the British merchants have frequent conflicts. उनके बीच में काफ़ी झगड़े होते रहते थे to pay the taxes. When the British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian and the foreign merchants, the situation came to a boil. Actually, it was told to everyone to pay the taxes, even though they are Indian or a foreign merchant. कोई भी merchant हो, Indian हो या foreign merchant हो, सबके लिए tax pay करना applicable था. But the Britishers were not ready, and that was the reason why this situation came to boil. मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया situation. Boil मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rule and trade as per the terms and condition. तो फाइनली एक ऑर्डर पास किया गया था बाय द नवाब ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिशर्स दैट अगर कोई यहाँ पे अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता है और ट्रेड करना चाहता है, तो एज पर द रूल्स एंड द रेगुलेशंस दे हैव टू पे द टैक्सेस. सो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ओनली वन कैन ट्रेड ओवर देयर इन बंगाल, अगर किसी को भी करना हो तो, इंक्लूडिंग द ब्रिटिशर्स. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिशर्स फ्रॉम कैलकट्टा. तो इतना काफ़ी था सिराजुद्दौला के लिए कि वो एक वॉर का ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि इवन दो द ऑर्डर वॉज पास्ड बाई हिम, ब्रिटिशर्स did not pay any taxes. So this was the reason why his option was finally for the war, and finally he expelled Britishers from Calcutta. Calcutta से उनको बाहर निकाला गया. The British counter-attacked under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah, with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. तो इसका काउंटर अटैक करते हुए, इसका जवाब देते हुए ब्रिटिशर्स ने भी जवाब दिया, जिस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव उनके लीडर थे. तो उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्राइब्ड, ठीक है, अपनी तरफ करना, उनको झांसा देना, ठीक है, लालच देना मिर जाफ़र को, जो कि उनके कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, और उनको प्रॉमिस किया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, ठीक है, तो
बंगाल का जो थ्रोन है, बंगाल का जो कुर्सी है, राजा का जो कुर्सी है वो तुम्हें मिल जाएगा। सिराजुद्दौला को हटा के तुम्हें वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। एंड दिस वॉज इनफ एंड मीर जाफर कन्विंस्ड एंड ही जॉइन देयर साइड। With his help, Robert Clive defeated and murdered सिराजुद्दौला in the Battle of Plassey। तो क्या हुआ, मीर जाफर के हेल्प से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को डिफीट कर दिया, हरा दिया और उनको मर्डर भी कर दिया, ठीक है, मार भी डाला। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ प्लासे। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसलिए ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर माना जाता है, क्योंकि ये पहला वॉर था जो कि ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडिया के बीच में हुआ था। इवन तो इंडिया के बीच में नहीं हुआ था, बट सिराजुद्दौला ही बिलोंग फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, सो तो ये बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया माना जाता है। तो यहाँ से ब्रिटिश रूल का जो रूलिंग है वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटिशर्स का। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India. Now, next is Battle of Buxar. As per the East India Company appointed Mir Jafar as Nawab of Bengal, Robert Clive also went back to England. जैसे प्रॉमिस किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर जाफर को प्रॉमिस किया था that if you will help us, if you are from our side, we will give the throne of Bengal to you। तो जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने प्रॉमिस को निभाया, उनको वहाँ का नवाब बना दिया। एंड आफ्टर दैट रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड, वो वापस इंग्लैंड चले गए थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम Mir Jafar became hostile towards the Britishers. The company decided to replace him with his son-in-law Mir Kazim। जैसे जैसे टाइम गया, मिर जाफर भी उनके खिलाफ होने लगे थे ब्रिटिशर्स के। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा, डिसाइड किया कि अब इनको भी रिप्लेस कर दिया जाए मिर जाफर को, और उसकी जगह पे उनके सन इन लॉ मिर काजिम को बिठाया जाए, उनको नवाब बना दिया जाए बंगाल का। मिर काजिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। सो वो काफ़ी एक डिसिप्लिन थे, एफिशिएंट थे और काफ़ी बुद्धिमान क्लेवर रूलर थे वो। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विद ईच अदर। ये प्रॉब्लम चालू हुआ था बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी ऑन द अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट। टैक्स नहीं पे कर रहे थे, उस बात का ये प्रॉब्लम जो था शुरू हुआ था, जो अल्टीमेटली क्या हुआ, इसका रिजल्ट दोनों के दोनों जो फोर्सेस थे वो फेस टू फेस आ गए, मतलब उनके बीच में काफ़ी सारे फ्रीक्वेंट फाइट्स हुए थे। इन 1763 सेंचुरी मिर काजिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। 1763 सेंचुरी में मिर काजिम जो थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो थे डिफीट हो गए थे, हार चुके थे, पर किसी तरह से वो वहाँ से बचकर भाग गए, मतलब एस्केप कर गए, वो भाग गए। He reorganized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Sujauddaulah and Mughal Emperor Shah Alam II। पर फिर किसी तरह से उन्होंने अपना आर्मी दोबारा बनाया, ठीक है, किसके हेल्प से? नवाब ऑफ औध, औध के जो नवाब थे उनके हेल्प से, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II, इन सब लोगों के हेल्प से उन्होंने अपना दोबारा से एक आर्मी रीऑर्गेनाइज किया। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764 सॉरी। सो फाइनली उनके बीच में इनका जो कंबाइंड फोर्सेस था और जो कंपनी का फोर्सेस था वो कहाँ पर आके मिले? बक्सर में। बक्सर इज द नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पे ये बैटल हुआ था इन द ईयर 1764। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध दैट इज लखनऊ नाउ एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर द कंट्रोल। और देखते देखते जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ये वॉर भी जीत गया, बैटल ऑफ बक्सर भी जीत गए वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में, और बंगाल, अवध जो कि अभी लखनऊ है, एंड मुगल एम्पायर पूरा का पूरा सब कुछ उनके कंट्रोल में दोबारा आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। नाउ अगेन रॉबर्ट क्लाइव वॉज टोल्ड टू कम इन टू इंडिया एंड टू कंट्रोल द सिचुएशन, जो कि हुआ था, जो सिचुएशन काफ़ी ही ख़राब हो चुका था बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में भी, तो दोबारा उनको बुलाया गया यहाँ पर इंडिया में। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, emerged as a political power in the subcontinent of India। and this is how, इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से आए थे इंडिया में, बट धीरे धीरे वो अपना पॉलिटिकल पावर जो थे एक करते हुए इंडिया के सारे सब कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।